Hello dear student, this is the second lecture from our history chapter number 1, the French Revolution. As yesterday we have already studied about the philosopher of the era, the John Locke, the Jean-Jacques Rousseau and the Montesquieu, because the ideas given by these philosophers were discussed among people at all places. The idea of these philosophers was also discussed and spread among people through books and न्यूज़पेपर्स बिकॉज जो इन फ़िलासफ़र्स के थ्रू कुछ आइडियाज़ क्रिएट किए गए थे उनको डिफरेंट सोसाइटीज़ में क्या किया स्प्रेड किया गया टू philosophers were discussed among the people at different places to aware them because the economy was going down continuously. Louis XVI had to increase the taxes. At that time only king had not the sole power to the tax but he had to call a state general meeting. Because on that time not only the king had the sole power, सिर्फ king ही एक sole power नहीं होती है. They had to inform to the state general meeting. They had to call a state general meeting. Calling the state general, the king's attempt to solve the financial crisis, removing some of the nobles' tax exemptions. However, the nobility saw themselves as special with better blood and entitled to all their classes' privileges. The parliament, a judicial organization controlled by the nobility, blocked the king's move. He was forced reluctantly to call a meeting of the Estate General in 1788. जो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर भी देख सकते हैं. द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल May 5, 1789. जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी स्टेट जनरल की वो हुई थी हमारी 5th of May 1789. 5th of May 1789. अब इन स्टेट जनरल रिप्रेजेंटेटिव लाइक द लीडर्स फॉर्म्स three estates used to come and the text proposal were passed. स्टेट जनरल की मीटिंग में क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रॉम ऑल द स्टेट्स की तीनों स्टेट्स लाइक द फर्स्ट स्टेट फ्रॉम द सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट की तीनों स्टेट्स में जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा एंड देन टेक्स्ट प्रपोज्ड वर पास. फिर जो है टेक्स्ट प्रपोज जो है वो क्या होगा बेटा पास होगा. लास्ट टाइम a state general meeting took place in 1614 and only monarch had the power to call a state general meeting. और उस टाइम पे at that time only monarch had power, सिर्फ monarch को पावर थी कि वो पावर टू कॉल द स्टेट जनरल मीटिंग कि सिर्फ वो ही जो है किसको इन्फॉर्म स्टेट जनरल की मीटिंग को कर सकते हैं. हु लाइक द किंग. ठीक है, here I am talking about the king of that place of that dynasty. Okay, the next topic is on 5th of May 1789 Louis XVI called a meeting of a state general to increase the taxes. अब क्या हुआ 5th of May 1789 को लुइस 16 ने जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल टू इंक्रीज द टैक्सेस बिकॉज ऑफ कि टैक्सेस को क्या करना चाहिए और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए. दैट डे 600 पीपल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट वेयर देयर मीन्स 300 फ्रॉम द ईच स्टेट. मतलब 600 नंबर ऑफ 600 पीपल जो है उनको मीटिंग में अपॉइंट किया गया था, इन्फॉर्म किया गया था एंड 300 फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट एंड 300 फ्रॉम द सेकेंड स्टेट. ठीक है, एंड 600 पीपल वर फ्रॉम द थर्ड स्टेट. मतलब टोटल नंबर ऑफ 1200 पीपल जो है उस टाइम पे उन्होंने गैदरिंग वहाँ पर हुई होगी. ठीक है, 600 फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट एंड 600 फ्रॉम द थर्ड स्टेट एंड 600 फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट एंड ओनली 600 फ्रॉम द थर्ड स्टेट्स. And the special feature was no entry for the farmers, peasants, artists and women were not allowed. किसी भी तरह का वो farmers, peasants या वो peoples जो basically थर्ड स्टेट से बिलोंग होंगे उनके पास राइट नहीं है कि वो इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं. दे वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन दिस मीटिंग. यस,
And people from the third estate brought their demands in 40,000 words, but they were not fulfilled. अब जो जितने भी थर्ड एस्टेट के पीपल थे उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स करी जो किंग के थ्रू इसको फुलफिल नहीं की गई थी. एंड व्हाट वाज द डिमांड? Meeting of the estate general to vote by head or by order. The delegates of the third estate insisted that the three estates meet together, that the vote be taken by head rather than by order. Since there were far more delegates from the third estate, this plan would give them a majority. The king refused to grant their request. The third estate refused to budge. अब क्या हुआ? किंग के थ्रू उनकी डिमांड्स को क्या कर दिया गया? एज ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि किंग के थ्रू उनकी डिमांड्स को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया. अब नेक्स्ट इज द वोटिंग सिस्टम ऑफ एस्टेट जनरल. अब एट दी एंड क्या हुआ? वोटिंग सिस्टम हुआ एस्टेट जनरल में. एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ऑल थ्री जनरल एस्टेट्स हैड टू वन वोट ईच. की हर एक इंडिविजुअल का, ऑल थ्री जनरल एस्टेट, तीनों एस्टेट्स के हैड वन वोट ईच. की तीनों में क्या होगा? सिंगल वोट होगा. थर्ड एस्टेट पीपल न्यू दैट इफ इन वोटिंग सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट कम टुगेदर दे विल श्योरली इंक्रीज मोर टैक्सेस ऑन थर्ड एस्टेट. ठीक है. अब क्या हुआ? थर्ड एस्टेट के जो पीपल्स थे, थर्ड एस्टेट की जो सोसाइटी थी, थर्ड सोसाइटी जो थी, उनको ये फियर था कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर सपोज 1-1 सिस्टम की ये लोग डिमांड कर रहे, इंडिविजुअली 1-1 वोट की डिमांड कर रहे हैं, तो अगर 1 वोट फ्रॉम द इफ़ दे गॉट 1 वोट फ्रॉम द सेकेंड स्टेट एंड 1 वोट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर मेजॉरिटी ज़्यादा होगी. श्योरली दे विल. इस चीज़ का फियर थर्ड स्टेट में बहुत ज़्यादा था कि अगर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट ने जॉइंटली हैंड रेस करके अगर विन कर लिया इस चीज़ को, तो ऑब्वियस डेफिनेटली वो हमारे ऊपर क्या करेंगे? टैक्सेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे. सो थर्ड एस्टेट वांटेड अ चेंज इन वोटिंग system. So at the end they want a change in the voting system. He wants that there should be a change in the voting system. कि voting system में क्या होने चाहिए? Changes आने चाहिए. They wanted that every member of the assembly have the vote. कि हर एक every member मतलब हर एक individual, rather वो first state से हो, second state से हो या third state से हो, they should have right to vote. उनके पास ये right होना चाहिए कि वो वोट दे सकते हैं. And each member vote. फॉर एग्ज़ाम्पल द लेजिस्लेटिव, अगर हम लोग फर्स्ट स्टेट की बात करें तो वहाँ पर 1 वोट है. ओल्ड सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड सिस्टम, जो ओल्ड सिस्टम में था, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू किंग, की फर्स्ट सपोज जो फर्स्ट स्टेट है उसमें 1 वोट है, 1 वोट है, तो वो ओल्ड सिस्टम था. अब जो इट मीन्स 1 मेंबर 1 वोट. यहाँ पर एग्जांपल दिया जाता है कि जो लास्ट हमारा सिस्टम था इसमें उन्होंने बोला गया था कि हर एक असेंबली, हर एक सोसाइटी में से, हर स्टेट में से सिर्फ 1 वोट होगा. बट जो न्यू सिस्टम जो डिमांड करी थी किन्होंने, जो थर्ड एस्टेट ने डिमांड करी थी, अकॉर्डिंग टू मैम 1 मेंबर इक्वल्स टू 1 वोट. की एक मेंबर के पास 1 वोट होना ही चाहिए. 1 पर्सन 1 वोट अकॉर्डिंग टू द न्यू सिस्टम. बट if I am talking about the old system, 1 state equals to 1 vote. की एक स्टेट है तो 1 ही वोट होगा. बट किंग रिफ्यूज़ टू डू सो. बट किंग ने जो है इस चीज़ को क्या कर दिया? रिफ्यूज़ कर दिया कि ये न्यू सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा. सो एट द एंड द थर्ड स्टेट पीपल वेंट आउट ऑफ असेंबली टू प्रोटेस्ट. अब जो थर्ड एस्टेट के पीपल्स से वो कहाँ चले गए? ही वेंट आउट ऑफ असेंबली टू प्रोटेस्ट. वो असेंबली से आउट हो गए किसके लिए? एंड दे वांट अ प्रोटेस्ट के लिए. सो एट द लास्ट ऑन 20th of June 1789 थर्ड एस्टेट पीपल असेंबल इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ द वर्साइल्स. ये देखिए, ऑन 20th June 1789 representatives of the third estate assembled at the indoor tennis court in Versailles. They declared themselves a national assembly. They gave themselves the power to pass laws on behalf of the French people. They were led by Mirabeau, born in a noble family, and Abbé Sieyès, originally a priest. Mirabeau delivered power speeches to the assembled crowd, and Abbé Sieyès wrote an influential pamphlet called "What is the Third
estate. Let me tell you one thing, there is a little bit change in this. On 20th of June 1789, third estate people assembled in indoor tennis court of Versailles. They declared themselves National Assembly. They decided that they would write the Constitution of France and very limited power would be given to the king. According to them, इन्होंने डिसाइड किया, they declared themselves as a national assembly. उन्होंने आपको as a national assembly क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया. एंड एट द एंड दे डिसाइडेड दैट देयर वुड बी राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस, की वो क्या करेंगे, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनाइज करेंगे, लिखेंगे, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन रेस करेंगे एंड वेरी लिमिटेड पावर वुड बी गिवन टू द किंग. और बहुत ही लिमिटेड पावर्स होंगी जो किसको प्रोवाइड की जाएंगी, किंग को. दे टुक एन ओथ दैट दे वुड नॉट लीव दैट प्लेस अनलेस दे राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस. एंड एट दी एंड वो बहुत एक आप कह सकते हो बहुत ज़िद में आ चुके थे कि वो इस प्लेस को जब तक लीव नहीं करेंगे जब तक वो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए नहीं लिख देते. एंड दे वर बीइंग लेड बाय टू people, or there are two people who played a very important role in this, the Mirabeau and the ABCs. Who was Mirabeau? Mirabeau was born in noble family, that means he belonged to the second estate. I will tell you about him further. He was a great influencer through his speeches. जो मीराबाऊ थी वो बहुत ज़्यादा ही, मीराबाऊ जो थी वो बहुत ज़्यादा एक कुछ इन्फ्लुएंसर थी, मतलब वो अपनी स्पीचेस से इतना ज़्यादा इम्प्रेस करते कि बहुत लोग इम्प्रेस होते थे उनकी स्पीच से. एंड ही वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली, दैट मीन्स ही बिलोंग टू द सेकेंड एस्टेट. एंड स्टिल देयर इज अ सस्पेंस हियर दैट ही बिलोंग्स फ्रॉम अ सेकेंड एस्टेट. इट्स मीन्स फ्रॉम द नोबल फैमिली, नोबिलिटी से ये सेकेंड स्टेट से बिलोंगिंग थे. बट स्टिल he had that concern about the third estate. बट स्टिल उनके अंदर वो एक आप कह सकते हो थर्ड एस्टेट के लिए बहुत सारी एक गुड वाइब्स थी, गुड फीलिंग्स थी कि किसी भी तरह उनके साथ भी उनको भी इक्वल राइट्स प्रोवाइड होने चाहिए रादर देन एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट. एंड ABCs was a priest, and he wrote a book named Who is Third Estate, and he belongs from the first estate. And इन्होंने एक बुक लिखी थी, what is the third estate, what is the third estate, कि third estate कौन है. The time when constitution was being written, people were very angry and was destroyed because of the drought. अब क्या हुआ, दैट द टाइम व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखा जा रहा था, उस टाइम पर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंग्री थे. दे आर वेरी एंग्री बिकॉज द क्रॉप्स वॉज टोटली फेल. जो क्रॉप थी वो क्या हुई थी, वॉज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द ड्राउट. जो क्रॉप्स थी वो क्या हुई थी, बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो गई थी, बिल्कुल ख़राब हो गई थी. ब्रेड प्राइजेस वर इंक्रीजिंग अ लॉट. जो ब्रेड्स के प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे. पीपल ऑफ फ्रांस अटैक्ड ऑन बास्टिल जेल, एज वी हैव ऑलरेडी रीड इन द फर्स्ट लेक्चर. द किंग कुड नॉट डू एनीथिंग. Rumors spread in all over the country that second estate people have sent some people to destroy the crops of farmers. अब कुछ इस तरह की रूमर्स भी स्प्रेड हो रही. सबसे पहले आप लोगों ने स्टडी किया था फर्स्ट लेक्चर में, कुछ इस तरह की रूमर्स स्प्रेड हो रही थी कि किंग ने ये कमांड करी है कि वो ओपनली फायर करेंगे. अब यहाँ पर भी कुछ इस तरह की रूमर स्प्रेड हो रही थी कि किंग ने ये कमांड करी है कि क्रॉप्स को, कि जितने भी थर्ड एस्टेट के पीपल्स हैं उनकी क्रॉप को क्या किया जाए, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. हियरिंग दिस द फार्मर्स वर मोर एंग्री. नाउ दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन द फैमिलीज ऑफ नॉबल्स. एंड एट द एंड जो वहाँ के फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे और उन्होंने जो नॉबल्स फैमिलीज थी उनके ऊपर क्या कर दिया था, अटैकिंग स्टार्ट कर दी थी. नॉबल फैमिलीज वर लूटेड एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वर बैन. अब एट दी एंड क्या हुआ कि जितने भी नॉबल्स थे उनकी फैमिलीज़ को क्या किया गया, अटैक किया गया. और जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ पर इस पिक्चर में
देख भी सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्या कर दिया गया, बिल्कुल बर्न कर दिया गया, जला दिया गया. Few nobles ran away and finally Louis XVI had to go पाप. यहाँ पर आप देख सकते हैं storming of the Bastille due to severe winter. The harvest was not good that time. The prices of bread rose and hoarders exploited the situation. There was not enough supply of their daily bread. Angry women stormed into the shops. Rumors spread that the king had ordered Swiss troops to move into the city. Fearing for their lives, some 7,000 men and women broke into a number of government buildings in search of arms. Agitated crowds stormed and destroyed the prison Bastille. The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. This topic we have already discussed in the first lecture of this video. Yes, liberated prisoners. Next is who are liberated prisoners. Prisoners of the Bastilles were released. अब क्या हुआ, जितने भी prisoners थे जो बास्टिल में थे उनको क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया and marched down the street of Paris in victory. It was a great symbolic event, one which is still celebrated in France every year. बास्टिल मेकर पेरिस टुडे, आप इसकी करंट की ये देख सकते हैं. Yes, the great fear about the 1789. Okay, the end of July and beginning of August, there were riots in the countrysides. Peasants burned their noble châteaux and destroyed documents which contained their feudal ऑब्लाइजेशंस. कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, बिकॉज जितने भी फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा एंग्री थे ऑन द नॉबल्स की, वो नॉबिलिटीज़ पर, सेकेंड एस्टेट पर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि जस्ट बिकॉज ऑफ देम जो हमारी क्रॉप्स जो हैं वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉयड हो रही है. बिकॉज कुछ इस तरह की रूमर स्प्रेड हो रही थी कि सेकेंड एस्टेट को ये कमांड की गई है कि आप जितने भी फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप्स को क्या करेंगे, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे. Peasants burned their noble statues and destroyed documents which contained their feudal obligations. And the night of August 1789, the National Assembly responds to the Great Fear. On August 4, 1789, one by one, member of the nobility and clergy rose to give up the feudal dues, the serfdom, the tithes, hunting and fishing rights, personal privileges. In one night, feudalism was destroyed in France and tithes were abolished. Land owned by church was confiscated. Clergy were forced to give up their privileges. Government acquired assets worth at least 2 billion livres. The assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. And at the end जो वहाँ पर abolishing the feudal system, जो feudal system था at the end वहाँ पर क्या हो गया, abolish हो गया.